हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी एंड ऑल रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स टू फिस्कल पॉलिसी। इसका डायरेक्ट यूटिलिटी क्या है हमारे इकोनॉमी में। इन टुडे सेशन विल सी व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड विल आल्सो डिस्कस all related concepts to monetary policy in this video. So, let us start with the definition first. Monetary policy is a set of tools that a nation's central bank has available to promote sustainable economic growth. यहाँ पे आप एक कीवर्ड देखे हो, that is nation's central bank. In case of fiscal policy, it is the central government, but in case of monetary policy, it is the central bank that decides or that frames the monetary policy. ठीक है, and it does by controlling the overall supply of money. ठीक है, RBI or the central bank of any country frames its monetary policy to check economic growth by checking supply of money that is available to the nation's banks, consumers and its businesses. जो supply of money हमारे देश के बैंक्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए और बिजनेस हाउसेस के लिए अवेलेबल हैं, by checking that supply of money, RBI or any central bank ensures sustainable growth in the country. ये है बेसिक फंडा मॉनेटरी पॉलिसी का. देयर आर थ्री कीवर्ड्स, दैट इज सेंट्रल बैंक एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. इट एंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक. So we understood what is monetary policy. Now let us see what are the objectives of monetary policy in a brief way. हम देख लेते हैं. The main objective हमने already discuss कर रखा है. एक तो है economic growth, but उसका जो मेजर पार्ट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, दैट इज इन्फ्लेशन. सो आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी चेक्स इन्फ्लेशन. ठीक है, इफ द हेल्दी लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज इन आवर कंट्री और नॉट, आरबीआई checks that with the help of monetary policy. Growth, as already discussed. Priority sector lending, we all know कि priority sector lending होता क्या है, तो briefly और एक बार देख लेते हैं. If there are certain banks here and if they start lending to only business houses and corporates, तो बाकी जो retail consumers हैं, जो अपने जैसा retail consumers हैं, personal loan, car loans लेंगे या तो MSMEs हैं, उनको लोन नहीं मिलेगा. To ensure that sustained and equitable credit is given in our country, RBI ये priority sector lending भी check करता है through monetary policy. Employment generation is also, they are all interlinked. Inflation, growth and employment generation, they are all interlinked. RBI also ensures employment generation in the country through monetary policy. External stability, to just check the export import वाला scenario country में सही चल रहा है. ठीक है. Then encouraging savings and investment in overall economy, ताकि लोग ज़्यादा investment करें, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो बढ़े, जो कि अल्टीमेटली बूस्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को. So let us see what are the types of monetary policy tools. So RBI uses these two kinds of monetary policy tools. One is quantitative tools and another is qualitative tools. Within this quantitative tools there are few tools, and also within this qualitative tools there are few other tools. But ये जो basic differentiation है, ये दो types के हैं. One is quantitative tools and another is qualitative tools. What is quantitative tools? As the name suggests, इसमें हम क्या करते हैं, quantity and volume of money supply check करते हैं. That is why it is quantitative tools. ठीक है. These instruments designed to control the total volume or money of the bank credit in the economy. Basically इसमें क्या चेक होता है, total credit जो है through banks, इकोनॉमी को जो टोटल क्रेडिट मिलता है उसका वॉल्यूम चेक करना, दैट इज क्वांटिटेटिव टूल्स. सो इन क्वांटिटेटिव टूल्स हमने डिस्कस किया कि इन क्वांटिटेटिव टूल्स ये एक टाइप का टूल्स है. तो इसके अंदर और भी मतलब इसके अंदर छोटे छोटे टूल्स रहते हैं जिसको आरबीआई यूज करता है. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इज ओएमओ, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये एक क्वांटिटेटिव टूल है, आपको ये भी याद रखना है. सो थ्रू दिस ओएमओस आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सेल्स और बाइज सिक्योरिटीज इन द मनी मार्केट. ठीक है, बस ये सिंपल फंडा है. आरबीआई इधर सेल सिक्योरिटीज और बाय सिक्योरिटीज इन द मनी मार्केट. ये जो सेलिंग एंड बाइंग का प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. नाउ यू विल आस्क कि ये करता क्यों है, व्हाई, मतलब व्हाई देयर इज अ नीड फॉर आरबीआई टू सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट. ये है रीजन. सपोज इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, सपोज यहाँ पे भी इन्फ्लेशन चल रहा है. इन्फ्लेशन में क्या होता है, लोगों के पास ज्यादा कैश रहता है, लिक्विडिटी रहता है. सपोज इन्फ्लेशन इज टू हाई,
तो ये लोगों के पास ज्यादा कैश है, तो आरबीआई नीड्स टू एब्जॉर्ब दिस एक्सेस लिक्विडिटी, ताकि हमारी इकोनॉमी में एक सस्टेनेबल लेवल का इन्फ्लेशन बने रहे। तो ये जो इन्फ्लेशन लेवल को कम करने के लिए व्हाट आरबीआई विल डू इज आरबीआई विल सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट। तो व्हेन आरबीआई विल सेल दिस सिक्योरिटीज, तो अल्टीमेटली लोग क्या करेंगे, पैसा देके खरीदेंगे, तो दैट अमाउंट ऑफ कैश विल बी ट्रांसफर्ड टू आरबीआई। सो इन दिस वे एक्सेस लिक्विडिटी इज चेक्ड। ये जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो चेक हो गया। एक्सेस लिक्विडिटी चेक होने से क्या होता है, फिर इन्फ्लेशन चेक पे आ गया। इन केस ऑफ डिफ्लेशन आरबीआई बाई सिक्योरिटीज इन द मार्केट। बाय करने से क्या होता है, आरबीआई विल बाय द सिक्योरिटीज, आरबीआई विल एब्जॉर्ब द सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट, इन रिटर्न आरबीआई विल इन्फ्यूज कैश इन द मार्केट। तो इन केस ऑफ डिफ्लेशन केस का फिर से लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, एंड दैट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ऐसे ही ये दो टूल्स यूज होते हैं, इधर आरबीआई विल सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट और बाय सिक्योरिटीज इन द मार्केट। तो इसे क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। प्लीज आपको ये याद रखना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्वांटिटेटिव टूल है। देन अनदर टूल इज रिजर्व रिक्वायरमेंट। हमें पता होगा कि सीआरआर एसएलआर हमने सुना होगा कि क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, बेसिकली सीआरआर में क्या होता है, a certain percentage of commercial banks net demand and time liability, वो that has to be deposited with RBI। ये है सीआरआर का फंडा। एंड सेम फॉर एसएलआर, the banks need to deposit certain percentage of their reserve in the form of gold and foreign securities। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको पता होगा बैंक का लाइबिलिटी क्या है, जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक, द अमाउंट ऑफ मनी वी डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स, दैट इज लाइबिलिटी फॉर द बैंक। इन रिटर्न जो वो लोन पे देते हैं, दैट आर एसेट्स फॉर द बैंक। तो जो टोटल लाइबिलिटी है उसका सर्टेन परसेंटेज मस्ट बी डिपॉजिटेड विद सीआरआर। सपोज ये एक बैंक है, इसे 100 रुपीज डिपॉजिट में मिला, तो बैंक यूजुअली क्या करते हैं, यही 100 रुपीज को मतलब जो यूजुअल ऑपरेशन है, ये 100 रुपीज को फिर ये लोन पे दे देंगे, और कोई पर्सन को या कोई बिजनेसेस को ये लोन पे दे देंगे। बट नो, सीआरआर में क्या करना पड़ता है, दिस परसेंटेज मस्ट बी डिपॉजिटेड विथ आरबीआई। यहाँ पे आरबीआई है, ठीक है, तो बाकी रेस्ट अमाउंट आप लोन पे लगा दो। सो ये जो अमाउंट आरबीआई के साथ रहता है दैट इज रिजर्व। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर में ऐसे ही कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। तो बेसिकली ये होता है। एंड हाउ आरबीआई यूजेस these two tools to check inflation। देखो सीआरआर, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर की रेट बढ़ा देगा। सपोज आरबीआई सीआरआर का रेट बढ़ जाता है, तो ये टोटल बैंक का क्रेडिट है, सीआरआर का रेट बढ़ गया, मतलब अर्लियर इट यूज्ड टू बी दिस, नाउ इट यूज्ड टू बी दिस, नाउ इट इज दिस। अभी आप देख रहे हो कि जो अवेलेबल क्रेडिट है, अवेलेबल स्कोप है बैंक के पास टू लेंड टू द रिटेल कंज्यूमर्स, टू लेंड इन द मार्केट, वो कम हो गया। इन दैट केस लोगों के पास लिक्विडिटी फिर से कम हो गया, एंड इन्फ्लेशन इज चेक्ड। एंड ऑन द अदर हैंड डिप्लेशन जब होता है, क्या करते हैं, रिजर्व रेशियो को कम कर देते हैं। सपोज अर्लियर इट यूज्ड टू बी दिस, नाउ इट इज दिस। तो बैंक के पास अभी ज्यादा स्कोप है क्रेडिट देने का, उस हिसाब से ज्यादा लोन्स लेंगे लोग, उस हिसाब से अगेन लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, एंड अगेन द इकोनॉमी विल ग्रो। So this is how these reserve ratios are operated by the Reserve Bank of India to check inflation in our country। सिमिलर वे पे रेपो ऑपरेशंस भी हैं, रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, रेपो रेट इज अ रेट एट व्हिच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम सेलिंग देयर सिक्योरिटीज टू द आरबीआई। जब ये बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं मनी आरबीआई से, जिस रेट पे बोरो करते हैं दैट इज रेपो रेट। एंड समटाइम्स आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, वो जिस रेट पे करते हैं दैट इज रिवर्स रेपो रेट। वैसे ही आपको पता होगा, ये अगर बोरो कर रहे हैं उस रेट, सेम सिमिलर वे पे जैसे सीआरआर एसएलआर पे RBI used to check inflation, the level of inflation, similar way पे रेपो एंड रिवर्स रेपो पे भी कोई सिमिलर वे पे ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन चेक करेंगे इकोनॉमी में। नाउ लेट अस सी व्हाट आर क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स of RBI's monetary policy। These instruments are used for discriminating between various uses of credit। वहां पे हमने देखा कि जैसे नाम सजेस्ट कर रहा था, क्वांटिटी हम चेक करते थे, क्वालिटी पे यहाँ पे भी सेम है कि हम क्वालिटी ऑफ क्रेडिट चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं लिखेंगे कि चलो इतना रिजर्व यहाँ पे रख लो, कि आप इतना अमाउंट थ्रू कैश यहाँ पे हमारे पास रख दो।
ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट क्वालिटी, जो क्रेडिट का क्वालिटी है उस पर डिसीजंस लेंगे। तो दीज आर द क्वालिटेटिव टूल्स। तो इसमें हम देखते हैं क्वालिटेटिव टूल्स में क्या क्या है। वन इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट से मतलब क्या है, सपोज बैंक का जो टोटल क्रेडिट है ये है, टोटल क्रेडिट ये है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि 80% ऑफ दिस टोटल क्रेडिट इज गोइंग टू अ पर्टिकुलर सेक्टर, सपोज रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है। अगर बैंक, सारे बैंक्स का 80% क्रेडिट इज गोइंग टू द रियल एस्टेट सेक्टर, इमेजिन ए सिचुएशन व्हेन रियल एस्टेट सेक्टर क्रैशेस, तो बैंक का हालत क्या हो जाएगा। सो यही होता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो आरबीआई क्या करता है, डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स को कितना कितना लोन चाहिए, आपका टोटल क्रेडिट का व्हाट परसेंटेज यू कैन गिव टू द पर्टिकुलर सेक्टर्स, और व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन गिव टू अ पर्टिकुलर सेक्टर, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन गिव टू अ पर्टिकुलर कंपनी ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर। तो यही होता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। देन अनदर टूल इज कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर हैं, सपोज हम रिटेल कंज्यूमर हैं, ठीक है, हम लेते हैं, सपोज वी अप्लाई फॉर अ पर्सनल लोन टू अ बैंक, ठीक है। तो इसका रेगुलेशंस भी करेंगे। सपोज यहाँ पे जो ईएमआई है टोटल, वी आर अलाउड टू टेक 60 ईएमआई, ठीक है। अभी आरबीआई क्या डिसीजन लेगा कि नहीं, अभी 60 मैक्सिमम नहीं है, अभी 48 मैक्सिमम है, 48 मंथ्स में आपको टोटल लोन चुकाना है। तो यू विल बी डिस्करेज टू टेक लोन्स, कि अरे अब 4 साल में अगर हमें टोटल लोन चुकाना है तो दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी। तो आप क्या करते हैं, लोन लेते ही नहीं हो। तो वही है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ऐसे ही इंडिविजुअल लोन्स को ये रेगुलेट करते हैं थ्रू ईएमआईज, और कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए हैं। थ्रू दिस वे ओनली कंज्यूमर क्रेडिट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। नाउ द लास्ट टूल इज मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, ये एक अनऑफिशियल टाइप ऑफ मीटिंग होता है आरबीआई का बैंक्स के साथ, जिसमें ये परसुएड करते हैं बैंक्स को कि नहीं, ये पर्टिकुलर सेक्टर अच्छे से फेयर नहीं कर रहा है, तो प्लीज डू नॉट गिव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू दैट सेक्टर। और नहीं तो आपको लग रहा है कि ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे इतना पैसा मत लगाओ। तो ये बेसिकली होता है परसुएशन, ठीक है। जो बैंक्स के हायर अथॉरिटीज हैं, तो उनको परसुएड करता है कौन, आरबीआई, ठीक है। सो दीज आर द थ्री टूल्स ऑफ क्वालिटेटिव, दीज आर द थ्री क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई। सो दिस इज इट गाइस अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा। एंड बिफोर वाइंडिंग अप, सेबी ग्रेड ए जनरल का एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल। आप यहाँ पे, आपको एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बाय फैकल्टी आपको मिलेगा, 1-to-1 सेशन यू कैन हैव विद फैकल्टी। बाकी आपको जो पूरा वीडियो कोर्स एंड एवरीथिंग, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड। बट आपको ये स्पेशल चीजें ये मिलता है, एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट। आप कोर्स ज्वाइन करते ही आपको एक मॉक टेस्ट मिलता है, जिसमें आपका हर एक सेक्शंस के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। एंड देन आवर एक्सपर्ट फैकल्टीज रेकमेंड यू कि आपको कौन से सेक्शन में ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। एंड द सेम वे आरबीआई ग्रेड बी का एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। यू कैन विजिट आवर साइट here or call to this number to know more details about these two कोर्सेस, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपका ये फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।